हेलो स्टूडेंट्स। आज आपका जो सीईटी का टेस्ट कंडक्ट हुआ है फॉर द चैप्टर्स ऑसिलेशन, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके क्वेश्चंस आई एम गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर। यू कैन रेफर द लेक्चर। जो क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आए आप उसे देख सकते हैं, और इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कम इन ऑफिस या क्लासरूम में भी आप पूछ सकते हैं अगर आपको कोई क्वेरी रहेगी तो। वैसे इजी पेपर है, आपको समझ में आ जाएगा। द एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल, क्वेश्चन नंबर 1, द एम्पलीट्यूड ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM is 4 centimeter. So amplitude A is 4 centimeter, which is 4 into, let it be in centimeter only, because बाकी चीजें भी दिख रहे हो आप तो सीजीएस यूनिट में दिया हुआ है। At the mean position, the speed of particle is 16 centimeter per second. Speed at mean position. बेटा लोग, speed at mean position is maximum. Mean position पे velocity of the particle performing linear SHM is maximum, and its formula is A omega, and the value given is 16 centimeter per second. The distance in centimeter of the particle from mean position. Distance means x का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है from mean position, at which the speed of the particle becomes 8√3 centimeter per second. तो speed at this position is 8 into √3 centimeter per second. आपको ये जब स्पीड है तो उस वक्त आपका डिस्टेंस कितना ये आपको पूछा हुआ है। Velocity at mean position is maximum, which is a omega. ये क्यों दिया है? You know a, आपको यहाँ से ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी। So A omega is 16, so omega is 16 by A, velocity at mean position, which is the maximum value, and maximum velocity is A omega, which is 16 given to you. यहाँ से A की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, you will get omega, which is 16 upon A की वैल्यू is 4, so this is 4 radian per second. This is value of omega. Now आपको x find out करना है when your velocity is 8√3. So what is formula for velocity at any general position? Omega under root of a square minus x square, but v value is given, it is 8 into √3. omega हम लोगों ने find out किया, it is 4. a is given which is 4. CGS units में ही है, so आंसर भी CGS में आएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो 8 का स्क्वायर इज 64 एंड √3 का स्क्वायर इज 3, 4 का स्क्वायर इज 16, यहाँ से आपका रूट हट जाएगा, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 16 इस साइड आके डिवाइड करेगा, 64 इंटू 3 अपॉन 16, इट इज 16 माइनस एक्स स्क्वायर विल बी रिमेनिंग ओवर हियर। 16 4 जा 64, 4 3 जा 12, दिस इज 16 माइनस एक्स स्क्वायर इस साइड आएगा, 12 उस साइड आएगा, एक्स स्क्वायर लेफ्ट साइड आया तो इट विल बिकम पॉजिटिव, 12 उस साइड आएगा, इट विल बिकम नेगेटिव, 16 माइनस 12, so x square is 4, so taking square root, so x is 2 centimeter. So distance from mean position is 2 centimeter. That is option number D. Option D is the perfect answer for your question number 1. So क्या किया हम लोगों ने? Amplitude is given, velocity at mean position is given, which is 16 centimeter per second, but velocity at mean position is maximum and its formula is a omega. तो यहाँ से हम लोगों ने omega find out कर लिया। Now question is what? You have to find out displacement when the velocity is 8√3 centimeter per second. So आप velocity का formula use करोगे at any position x, वहाँ पे velocity की value substitute किए, omega a की value substitute किए, you got value of x. Now question number 2, the average acceleration of a particle performing SHM over one complete cycle is 0. Average acceleration is 0, ये तो हमको पहले से ही पता हुआ है। A particle moves so that its acceleration a is given by a is equals to minus bx, where x is the displacement from equilibrium position and b is a non-negative real constant, the time period of oscillation. Acceleration is given minus bx, but beta what is formula for acceleration? It's minus omega square x. तो अगर आप कंपेयर करो तो देखो ओमेगा स्क्वायर के प्लेस पे कौन बैठा हुआ है? b. So what is your omega? It's under root of b. कंपेरिजन के बाद ना आपको फाइंड आउट क्या करना है? टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। व्हाट इज टाइम पीरियड? इट्स 2 पाई बाई ओमेगा।
ओमेगा की वैल्यू आपको पता है, इट्स रूट बी, सो टाइम पीरियड का आंसर आ गया 2 पाई अंडर रूट ऑफ 2 पाई अपॉन अंडर रूट ऑफ बी, विच इज योर ऑप्शन नंबर सी. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. दिस इज क्वेश्चन 3. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ पार्टिकल इन एसएचएम इज वी मैक्स. लेट अस राइट फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम स्पीड. मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला होता है बेटा ए ओमेगा. Then average speed of a particle in SHM is equals to, average speed find करना है, बट उसे हमें V max के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. What is formula for average speed? Average speed is total distance covered in one oscillation. Total distance upon total time. That is formula for average speed. अब total distance in one oscillation, total distance covered is 4 times of amplitude and time is your time period. 4a. and what is formula for time period? it is 2 pi by omega. क्योंकि मुझे v max के फॉर्म में लाना है, v max में a ओमेगा दोनों है, इसलिए ओमेगा के फॉर्म में इसे रिप्लेस करना पड़ रहा है. ये कैंसल्ड, इट इज 2a, ओमेगा विल गो इन न्यूमरेटर एंड दिस इज पाई. ये a ओमेगा की जगह पे आई विल राइट v max. सो आंसर विल बी 2 times of v max divided by pi. So average speed in terms of maximum velocity is 2v max divided by pi. That is option number D for question number 4. Now question number 5. What is question 5? A particle is having kinetic energy 1/3 of maximum value at distance of 4 centimeter from mean position. फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन. तो बोला क्या है कि काइनेटिक एनर्जी एट डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर इज 1/3 ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू. 4 सेंटीमीटर एक्स का वैल्यू है ये. 4 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट इज 1/3 ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू. सो फाइंड एम्पलीट्यूड. ए फाइंड आउट करना है हमको. सो x is 4 सेंटीमीटर और आपको एम्पलीट्यूड फाइंड करना है, दैट इज ऑल्सो इन सेंटीमीटर, सो नो नीड टू कन्वर्ट. व्हाट इज गिवन एक्चुअली? काइनेटिक एनर्जी जो जनरल फॉर्मूला है दैट इज 1/3 ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. ये गिवन है. व्हाट इज फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी एट एनी पोजीशन x? इट इज हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. यू कैन ऑल्सो राइट इट एज k. m ओमेगा स्क्वायर की जगह पे आप k भी लिख सकते हो. This is 1/3 and maximum kinetic energy का formula is what? Half of m omega square a square, which is total energy. Maximum kinetic energy का formula is total energy, which is half of m omega square a square. So half m omega square gone. आपके पास क्या बचा? a square minus x square is 1/3 into a square is a square by 3. ये a square by 3 इस साइड आएगा, माइनस हो जाएगा, x square उस साइड जाएगा, प्लस हो जाएगा. a square minus a square by 3 is your x square. This is 3a square minus a square, that is 2a square by 3 is your x square. So आपको पूछा किसका वैल्यू है? एम्पलीट्यूड. एंड x is given which is 4 सेंटीमीटर. So आप स्क्वायर रूट ले लो. This is root 2a by root 3 is x. So a is root 3x by root 2. रूट 3 न्यूमरेटर में, रूट 2 डिनोमिनेटर में. सो रूट 3 एक्स का वैल्यू इज 4 सेंटीमीटर बाई रूट 2. बेटा आप इस 4 को लिख सकते हो 2 इंटू 2. फिर ये रूट 2 एज इट इज, ये 2 को आप लिख दो रूट 2 इंटू रूट 2. ये 2 को आप लिख दो रूट 2 इंटू रूट 2 और ये 2 एज इट इज रखो और अपॉन में रूट 2. तो एक रूट 2 कैंसल्ड, तो ये दोनों एक ही रूट में मल्टीप्लाई हो जाएंगे. तो बचा 2 इंटू 3 2 जा 6, 2 रूट 6 सेंटीमीटर. दिस इज वैल्यू ऑफ एक्स एम्पलीट्यूड. ऑप्शन नंबर ए. काइनेटिक एनर्जी एट एनी जनरल पोजिशन मीन्स एक्स पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का 1/3 है. फॉर्मूला रखा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का, जनरल काइनेटिक एनर्जी का, इसको सिंप्लीफाई किया तो यहां से एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ एक्स आ गया. एक्स की वैल्यू 4 सेंटीमीटर सब्स्टिट्यूट किए एंड सिंप्लीफाई किए.
Answer for amplitude becomes 2 root 6 centimeter. That is option number A. Now question number 6. What is question number 6? The restoring force of SHM is maximum when, ये तो हमारा बेसिक डेफिनेशन है, ऑसिलेशन का स्टार्टिंग पॉइंट ही है कि रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम कब होता है एट एक्सट्रीम पोजिशन, बिकॉज F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X. जब X मैक्स होगा तो F भी मैक्स होगा. तो X मैक्स कहाँ होता है? व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम. दैट इज ऑप्शन नंबर A फॉर क्वेश्चन नंबर 6. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. A simple pendulum performs simple harmonic motion about x is equals to 0 means mean position with an amplitude a and time period t. The speed of pendulum at x is equals to a by 2 will be. स्पीड पूछा हुआ है बेटा, तो स्पीड का जो जनरल फॉर्मूला है वो अप्लाई करो. ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. यहाँ पे x की वैल्यू a by 2 इज गिवन, तो सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल्स टू a by 2. बट ऑप्शंस में t है, तो ओमेगा को आई विल रिप्लेस बाय 2 पाई बाई टी. x की प्लेस पे a by 2 हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे. इट इज गिवन, सो 2 पाई बाई टी अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4, 2 पाई बाई टी. इसे सॉल्व किया, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 3a स्क्वायर बाई 4, सो 2 पाई बाई टी इंटू root 3a by 2, 2 gone, so answer is pi into root 3a upon t, pi into root 3a upon t. That is option A for question number 7. Now question number 8. The displacement in meter of a particle in SHM is related to time in second is this. ये displacement का equation है. The frequency of motion is x का इक्वेशन दिया है 0.01 cos पाई t प्लस पाई बाई 4. बेटा आपका जो x का फॉर्मूला है उससे आप कंपेयर करो. 0.01 cos ओमेगा t प्लस 5, वेयर 5 इज फेज कांस्टेंट, इपोक और इनिशियल फेज. तो आप देख सकते हो ओमेगा के प्लेस पे आया हुआ है पाई, बट आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है. सो ओमेगा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 2 पाई n विच इज पाई, पाई पाई गॉन, सो 2n इज 1, सो n इज 1 by 2, 1 by 2 मीन्स 0.5 हर्ट्ज. सो फ्रीक्वेंसी का आंसर इज 0.5 हर्ट्ज. दैट इज योर ऑप्शन नंबर A. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. 2 SHMs आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन. बेटा ये सिंगल SHM है जिसका एम्पलीट्यूड है 5, द रेशियो ऑफ दियर एम्पलीट्यूड्स. और ये ऑलरेडी 2 SHM से, डबल SHM से, देख सकते हो दे आर एडेड. वी हैव 2 SHMs, कंपोजिशन ऑफ 2 SHMs. तो इस 2 SHMs का एक रिजल्टेंट फाइंड करना पड़ेगा. तो इस रिजल्टेंट का एक एम्पलीट्यूड बनेगा और इसका एम्पलीट्यूड 5 दिख ही रहा है. रेशियो ऑफ दियर एम्पलीट्यूड्स हमको फाइंड करना है, तो पहले हम इसका एम्पलीट्यूड फाइंड करेंगे. सो y1 कितना दिखाई दे रहा है? 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, साइन 2 पाई टी प्लस 5 रूट 3 कॉस 2 पाई टी. कंपोजिशन ऑफ 2 SHMs में आपको शॉर्टकट दिया हुआ है कि एक अगर साइन हो और एक अगर कॉस हो, तो ये आपका मान लो A1 है, ये आपका मान लो A2 है. A1 इज 5 and A2 is 5 root 3. So इसका resultant amplitude A will be under root of A1 square plus A2 square. Composition of 2 SHMs टॉपिक में एक sin एक cos means these 2 SHMs are perpendicular to each other. So formula for their resultant amplitude is this. So A1 is 5 and A2 is 5 root 3. इसे कैलकुलेट करेंगे तो आई विल गेट 10. 5 square is 25. This is 25, 3s are 75, root of 100 which is 10. So आपका फर्स्ट SHM का एम्पलीट्यूड इज A और सेकेंड जो SHM दिया है तो ऑलरेडी सिंगल SHM है. 5 साइन 2 पाई टी प्लस y बाई 4. इसका देखो 2 पाई टी, ये वाला टर्म भी सेम ही है. सो ये आपका सेकेंड SHM का एम्पलीट्यूड A डैश से दिखा दिया. 5 यूनिट रहने दो क्योंकि हम लोग को रेशियो ही लेना है.
तो अब फर्स्ट का रिजल्टेंट एसएचएम और सेकंड का फर्स्ट एसएचएम का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और सेकंड एसएचएम के एम्पलीट्यूड्स का रेशियो फाइंड करना है। तो इस एसएचएम का एम्पलीट्यूड इज ए और इसका हमने ए डैश के दिखाया है। ये a is 10 and a dash is 5. The answer is 2/1, which is 2:1. So the answer is option number B for question number 9. Now question number 10. A particle starts oscillating simple harmonically from its equilibrium position, means mean position से start हो रहा है with time period t. The ratio of kinetic energy and potential energy of other particle at t is equals to t/12. Very easy. काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो पूछा है, तो काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय पोटेंशियल एनर्जी. व्हाट इज फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी? हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. एंड व्हाट इज फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी? हाफ m ओमेगा स्क्वायर a x स्क्वायर. m ओमेगा स्क्वायर गॉन. बट बेटा एट टाइम t/12 आपको फाइंड करना है. ये आपको अच्छी तरह से पता है कि ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है. यहाँ पे अगर आपका x इज हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड, तो हाफ मीन पोजीशन से हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड जाने का जो टाइम है दैट इज t/12, और ये वाला टाइम है t/6. ये पढ़े हुए हम. तो टाइम t/12 पे पूछा मीन्स द पार्टिकल इज एट डिस्प्लेसमेंट ऑफ a/2 फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन. मीन पोजीशन से स्टार्ट भी हो रहा है, देख सकते हो आप. तो x की वैल्यू a/2 रखनी है हमें. सो ए स्क्वायर माइनस यहाँ पे a/2, यहां पर भी a/2, x इज a/2. टाइम से पता चला. सो ए स्क्वायर माइनस दिस इज a स्क्वायर बाई 4 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर बाई 4. इसे सिंप्लीफाई करेंगे. 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर दैट इज 3a स्क्वायर बाई 4 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर बाई 4. a स्क्वायर बाई 4 गॉन. न्यूमरेटर में 3 बचा, डिनोमिनेटर में 1. द रेशियो इज 3:1. Option number C for question number 10. Now question number 11. The total energy of a body executing SHM is E. So पहले हम total energy का फॉर्मूला ही लिख लेते. टोटल एनर्जी को दिखाया उसने E से है. फॉर्मूला इज हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, या आप हाफ ऑफ k a स्क्वायर भी लिख सकते हो. आपको जो फॉर्मेट यूज करना यूज कीजिए. Then the kinetic energy when the displacement is half of amplitude. Displacement is half of amplitude पे आपको kinetic energy पूछा है, but the answer is given in terms of E. Where E is this? तो आप kinetic energy का पहले जनरल फॉर्मूला यूज करो. It is half of m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. आप x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो. x की वैल्यू इज a/2, तो यहाँ पे a/2 डायरेक्ट स्क्वायर भी लिख सकते हो. सिंस आई एम प्रोवाइडिंग यू सोल्यूशन, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सारे स्टेप्स लिखूं. मैं स्टूडेंट नहीं हूँ जो एग्जाम देना, मुझे टाइम सेव करना है. आई एम हियर टू एक्सप्लेन द सम्स विद कैलकुलेशन, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग ऑल द स्टेप्स. मुझे तो क्या, मैं तो ऑप्शंस 3 लाइन में सॉल्व करके हटा दूं. 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बिकम्स 3a स्क्वायर बाई 4. तो आपको आंसर E के फॉर्म में लाना है, वेयर E इज योर टोटल एनर्जी हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर. सो आप क्या काम करो, 3/4 को बाहर रख लो, बचा हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर. ये आपका E है, तो 3/4 E इज द आंसर. ऑप्शन C. क्वेश्चन नंबर 11 आंसर इज C. नाउ क्वेश्चन नंबर 12. The time period of simple pendulum is T. What is formula for time period of simple pendulum? 2 pi under root of L upon G. Now what? When the length is increased by 10 centimeter, its time period is T1. तो T1 भी लिखो. T1 कब है? When the length is increased by 10 centimeter. लो, length की जगह पे L plus 10 कर दिया. Now when the length is decreased by 10 centimeter, its time period is T2. तो T2 भी लिख लो. Now the length is decreased by 10 centimeter. पूछा है what is the relation between T, T1 and T2. तो जब L length है, time period is T. When the length is L plus 10, time period is T1. When the length is L minus 10, the time period is T2. तो एक काम करो, आप सबका स्क्वायर कर लो भाई. T square is how much? It is 4 pi square L by G.
तो इट इज 4 पाई स्क्वायर जी इंटू एल। यहां पे भी करो, T1 स्क्वायर क्या हो गया 4 पाई स्क्वायर बाई जी और ये एल प्लस 10। यहां पे T2 का स्क्वायर करो, बोलो इट इज 4 पाई स्क्वायर बाई जी, ये एल माइनस 10। अब आप एक काम करते देखते, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, ऑप्शंस में भी प्लस में दिख रहा है कुछ तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो प्लस 10 और माइनस 10 कैंसिल हो सकते हैं। तो मैं T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर को ऐड करता हूं, तो जब मैं दोनों को ऐड करूंगा तो 4 पाई स्क्वायर बाई जी विल बी कॉमन ले लिया थोड़ा शॉर्टकट, ये एल प्लस 10 प्लस एल माइनस 10, तो 10 गॉन। तो ये T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर ये हो गया 4 पाई स्क्वायर बाई जी इंटू 2L। बेटा इस 2 को ना बाहर ही रखो, सो T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर ये 2 इंटू 4 पाई स्क्वायर ये L बाई जी, बट 4 पाई स्क्वायर L बाई जी इज योर टी स्क्वायर। तो इन ये देखो ये रहा, ये टी स्क्वायर है, सो T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर इज 2t स्क्वायर। इसकी जगह पे ओरिजिनल टी स्क्वायर रख दिया हम लोगों ने। सो ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, two identical springs are connected to mass m as shown in figure. K is spring constant of हर एक spring का है। if the period of configuration in A is 2 सेकेंड, तो इसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड दिया है, तो पीरियड ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इन B पूछा है, मतलब फर्स्ट केस का पीरियड इज 2 सेकेंड्स, आपको सेकेंड केस का पीरियड पूछा हुआ है। दिस इज स्प्रिंग कांस्टेंट K। तो फर्स्ट केस में व्हाट इज फॉर्मूला फॉर स्प्रिंग टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई K। तो फर्स्ट केस में ये दो स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में तो T1 लिख दिया, दिस इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई K सीरीज, और सेकेंड केस में पैरेलल में तो इसे T2 लिख दिया, तो इट विल बी 2 पाई अंडर रूट ऑफ मास अटैच टू लोअर एंड इज सेम इन बोथ द केसेस, K पैरेलल, बट व्हाट विल बी K सीरीज? K सीरीज क्या होगा, चलो बोलो। K सीरीज, दो केस अगर सीरीज में है तो पैरेलल वाला फॉर्मूला लगता है, तो K सीरीज विल बी K बाई 2 एंड K पैरेलल में है, पैरेलल में तो सीरीज रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगेगा K प्लस K विल बी 2K। तो आप एक काम करो, T2 को T1 से डिवाइड कर दो, तो T2 को आप T1 से डिवाइड करोगे तो 2 पाई अंडर रूट m, 2 पाई अंडर रूट m, K सीरीज विल कम इन न्यूमरेटर अपॉन K पैरेलल। T2 आपको फाइंड आउट करना है, केस नंबर 1 का टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड्स, K सीरीज इज K बाई 2 एंड K पैरेलल इज 2K, K अगेन गॉन, सो T2 बाई 2 इज दिस इज अंडर रूट ऑफ 1 बाई 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो T2 बाई 2 इज 1 बाई 2 हो जाएगा, ये T2 कैंसल, T2 इज 1 सेकेंड आ गया, T2 इज 1 सेकेंड, दैट इज ऑप्शन नंबर बी for question number 13। K series K by 2, K parallel 2K, रेशियो ले लिया टाइम पीरियड्स का। आंसर क्वेश्चन नंबर 14, a standing wave has 3 nodes and 2 antinodes, 3 nodes and 2 antinodes and is formed between 2 atoms having a distance 1.21 angstrom unit between them। 3 नोड्स एंड 2 एंटी नोड्स कब होता है बेटा? देख सकते हो आप, हाउ मेनी नोड्स? 3 नोड्स एंड 2 एंटी नोड्स, मीन्स 2 लूप्स आर प्रेजेंट। 2 लूप्स, अच्छा एक लूप का लेंथ कितना होता है? लैम्बडा बाई 2, तो 2 लूप का लेंथ, टोटल लेंथ कितना हो जाएगा? लैम्बडा। बट आपको क्या बोला है कि इन दोनों, ये जो 2 पार्टिकल्स है उनके बीच का डिस्टेंस इज 1.21 एंगस्ट्रॉम यूनिट, तो वो तो आपका डायरेक्ट लैम्बडा ही दिया है ना, 1.21 एंगस्ट्रॉम यूनिट, बिकॉज लेंथ बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स इज लैम्बडा ओनली, बिकॉज 3 नोड्स एंड 2 एंटी नोड्स मीन्स 2 लूप्स आर फॉर्मिंग,
इन बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। तो दो लूप का लेंथ इज लैम्डा और वो लेंथ दिया ही है 1.21, सो द वेवलेंथ ऑफ द स्टैंडिंग वेव इज 1.21 एंगस्ट्रॉम यूनिट, और आंसर भी एंगस्ट्रॉम यूनिट में पूछा है, सो द आंसर इज ए फॉर क्वेश्चन नंबर 14। द क्वेश्चन नंबर 15, the transverse displacement of a string fixed at both ends is given by, equation of stationary wave है, y and x are in meters and time in second, ये बहुत जरूरी है देखना, यूनिट्स क्या है, the wavelength and frequency, okay, what is given equation, y is equals to 0.06 sine 2 pi x by 3 into cos 120 पाई टी। अब स्टेशनरी वेव का जो जनरल इक्वेशन होता है 2a साइन 2 पाई एक्स बाई लैम्बडा इंटू कॉस 2 पाई एन टी या ओमेगा टी, कुछ भी कर सकते हैं, 2 पाई एन को ओमेगा, इससे कंपेयर करो, ये स्टेशनरी वेव का इक्वेशन है। इसमें एक्स टर्म साइन के साथ है, टी टर्म कॉस के साथ, वो उल्टा भी हो सकता है, कॉस के साथ वाला ये वाला एंगल हो सकता है, मीन्स यहाँ पे कॉस और यहाँ पे साइन भी हो सकता है। तो अगर आप कंपेयर करोगे तो दिस इज एक्स एक्स, तो 2 पाई की जगह पे 2 पाई, तो लैम्बडा की प्लेस पे दिख रहा है 3 ऐसा यूनिट में, एंड ये जो 2 पाई एन है उसके प्लेस पे दिखाई दे रहा है 120 पाई, पाई गॉन, सो एन इज 2 साइड डिवाइड करेगा तो एन विल बिकम 60 हर्ट्ज, सो वेवलेंथ इज 3 मीटर एंड फ्रीक्वेंसी इज 16 हर्ट्ज। तो आपको पहले वेवलेंथ पूछा है, देन फ्रीक्वेंसी 3 and 60, दैट इज ऑप्शन नंबर डी फॉर क्वेश्चन नंबर 15। बहुत इजी क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, इन स्टेशनरी वेव एनर्जी इज यूनिफॉर्मली, एनर्जी इज मिनिमम एट नोड्स, यही आंसर है, नोड्स पे डिस्प्लेसमेंट 0 होता है तो एनर्जी इज मिनिमम, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज एट एंटी नोड्स, so energy is maximum. Option number B is the correct answer for question number 16. Now question number 17, N1 is the frequency of pipe closed at one end and N2 is the frequency of pipe closed at both ends. If both are joined end to end, find the fundamental frequency. It is a good question. N1 is frequency of pipe closed at one end. Okay, ये रहा पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, इसका लेंथ मान लिया L1 है, तो इसका फ्रीक्वेंसी N1 है। व्हाट इज फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी फॉर अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, इट्स V/4L1। नाउ व्हाट, N2 इज फ्रीक्वेंसी ऑफ पाइप ओपन एट बोथ एंड्स। ये नहीं बोला है कि लेंथ इक्वल है कि नहीं है, मान लिया उसका लेंथ कुछ और है, हाँ, लेकिन इसमें कंडीशन होती है कि दोनों के डायमीटर से सेम होने चाहिए, तो इनर डायमीटर सेम है, इसका लेंथ अलग मान लिया L2, इसका ओपन पाइप है, इट्स फ्रीक्वेंसी इज गिवन एज N2। व्हाट इज फॉर्मूला फॉर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप, V/2L, तो इट विल बी 2N2। ये क्लोज पाइप है और ये ओपन पाइप। नाउ व्हाट इज गिवन, इफ बोथ द पाइप्स आर जॉइंड एंड टू एंड, एंड टू एंड मतलब इस तरह से, ये आपका फर्स्ट पाइप था जिसका लेंथ L2 था, सेकेंड पाइप, और ये आपका फर्स्ट पाइप था जो कि क्लोज पाइप था एंड इट्स लेंथ वाज L1, दे आर जॉइंड एंड टू एंड, तो ये एक सिंगल पाइप बन गया। ये कौन सा पाइप बनेगा, क्लोज पाइप, सामने दिख रहा है ओपन पाइप, क्लोज पाइप को सीरीज में या एंड टू एंड ज्वाइन किया तो इट विल फॉर्म अ क्लोज पाइप। तो उसका फ्रीक्वेंसी पूछा है, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लोज पाइप, तो इसकी फ्रीक्वेंसी n ही होगी, लेकिन ये कौन सा पाइप है, क्लोज पाइप है, तो क्लोज पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज V/4L, बट इसका L इज L1 प्लस L2, दोनों ऐड हो जाएगा। तो आप क्या काम करो, यहां से L1 L2 निकालो, L1 प्लस L2 विल गो इन न्यूमरेटर, V/4N, N डिनोमिनेटर में जाएगा, ये न्यूमरेटर में। आप यहां से ना L1 L2 का वैल्यू निकालो, L1 इज V/4N1, यहां से L2 इज V/2N2, N2 शिफ्ट किया, ये L1 L2 का वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करो, L1 की वैल्यू इज V/4N1 प्लस L2 की वैल्यू इज V/2N2, और ये है V/4N, तो V कैंसल्ड, सबका डिनोमिनेटर 4 बना देता हूं मैं, तो इससे 2 से ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, सो दैट डिनोमिनेटर बिकम्स 4। नाउ दिस इज 1/4N, 4 4 4 गॉन,
नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करते, दिस इज 1 इंटू एन टू एन टू प्लस 2n1 अपॉन n1 इंटू एन टू, दिस इज 1/n। सो रेसिप्रोकल लिया, सो n का आंसर क्या हो जाएगा, उल्टा करेंगे, n1 इंटू एन टू 2n1 प्लस n2, दिस इज फॉर्मूला, n1 इंटू n2 अपॉन 2n1 प्लस n2, सो n1 इंटू n2 अपॉन, ये ऑप्शन नंबर ए। देखो क्या किया, ये क्लोज पाइप फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी L1 निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ N1, ओपन पाइप फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला L2 निकाल लिया। नाउ दोनों पाइप्स को ज्वाइन किया, हुज टोटल लेंथ इज L1 प्लस L2, ये क्लोज पाइप बनेगा जिसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ये होगा। यहां से L1 प्लस L2 निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ L1 और L2 का जो वैल्यूज हम लोग ने पहले फाइंड आउट किया था वो सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई कर दिया, आंसर आ गया 17 का आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, when an open organ pipe produce third harmonic, number of notes, बेटा open organ pipe all harmonics are present, इसका फ्रीक्वेंसी n, दिस इज 2n, फिर ये 3n, 3n का बात कर रहा है। इसमें क्या होता है, ये फंडामेंटल मोड में इस तरह से डायग्राम होता है, फिर सेकेंड मोड में एक लूप इंक्रीज हो जाता है और थर्ड मोड में 2 कंप्लीट लूप्स एंड 1 हाफ लूप। तो आपको कौन सा मोड बोला, थर्ड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक इज दिस। तो इसमें कितने नोट्स दिखाई दे रहे हैं आपको, पूछा नंबर ऑफ नोट्स, 1 2 एंड 3, सो 3 notes are present. Answer is option number C for question number 18. Now question number 19, क्या क्वेश्चन दिया है, in a resonance tube the first resonance with the tuning fork occurs at 16 centimeters length पे हो रहा है फर्स्ट रेजोनेंस। ध्यान दो, एंड सेकेंड एट 49 सेंटीमीटर। रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट है, पाइप ओपन एट वन एंड एंड क्लोज पाइप हो गया, मीन्स द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 330 मीटर पर सेकेंड, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क, ओके। L1 इज 16 सेंटीमीटर फर्स्ट मोड में और L2 इज 49 सेंटीमीटर। वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 330 मीटर पर सेकेंड। बेटा ये सेंटीमीटर्स में और यहां पर मीटर पर सेकेंड दिया है, तो आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। सो दिस इज 0.16 मीटर, दिस इज 0.49 मीटर। बेटा L1 लेंथ कब है, दो अलग अलग मोड में रेजोनेंस ट्यूब ऑसिलेट हो रहा है। तो फर्स्ट मोड में व्हाट इज फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी, इट्स V बाय 4L, और सेकेंड मोड में क्लोज पाइप में ऑड हार्मोनिक्स होते हैं, मीन्स 3V बाई 4L हो जाएगा। सो ये फर्स्ट मोड में L1 और सेकेंड मोड में इट इज 3V बाय 4L। सो यहां से L1 निकाल लेते हैं, L1 का फॉर्मूला इज V बाई 4N, यहां से L2 का फॉर्मूला इज 3V बाई 4N। तो क्यों ना मैं L2 में से L1 को सब्ट्रैक्ट करूं, तो L2 इज 3V बाई 4N माइनस L1 इज V बाई 4N। L2 और L1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, L2 की वैल्यू इज 0.49 माइनस L1 की वैल्यू इज 0.16, यहाँ पे 3V माइनस V विल बिकम 2V बाई 4N, ये कैंसल्ड, ये सब्ट्रैक्ट करते हैं, 9 माइनस 6 इज 3 एंड 4 माइनस 1 इज 3, 0.33, और यहाँ पे वेलोसिटी हुई हमारी कितनी, 330, एंड दिस इज 2N, तो N will come in numerator and 0.33 will go in denominator. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सो दैट ये पॉइंट रिमूव हो जाए। सो ये हो गया 10, 2 से कट किया 5, सो N इज 5 into 100, दैट इज 500 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर ए। सम को ध्यान से देख लो, L1 दिया, L2 दो अलग अलग मोड में है, फर्स्ट मोड में ये फॉर्मूला होता है, सेकेंड मोड में ये,
सो L2 और L1 आर गिवन, सो मैं भी L2 L1 निकाल के उनको सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूं, यहां से आपको n आ गया। 19 का आंसर इज A। नाउ क्वेश्चन नंबर 20। A set of 24 tuning forks are so arranged that each fork gives 6 beats per second with previous one. If the frequency of last fork is double that of first, last fork का frequency 24 forks है, तो frequency of 24th fork is twice of frequency of first fork, twice को octave भी बोल सकते हैं। अच्छा, last की frequency ज़्यादा first से, means the forks are arranged in ascending order of frequency, तो frequency of second tuning fork is asked. Okay, so what is the question? इसका आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो। मैं एक काम करता हूं, मान लो फर्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी N1, तो सेकेंड का फ्रीक्वेंसी विल बी N1 से 6 ज्यादा, बिकॉज 6 बीट्स पर सेकेंड दे रहे, और असेंडिंग ऑर्डर में लास्ट का फ्रीक्वेंसी फर्स्ट से ज्यादा है तो असेंडिंग, फिर N3 इट विल बी N1 प्लस एक और 6 ऐड होगा तो 2 इंटू 6, N4 एक और 6 ऐड होगा तो N1 3 इंटू 6, N5 एक और 6 ऐड होगा 4 इंटू 6, 6 इज द बीट्स। अच्छा एक देखो, N2 पे 1 इंटू 6 है, 3 पे 2 इंटू 6 है, एक कम है मल्टीपल, 4 पे 3 इंटू 6 है, 5 पे 4 इंटू 6 है, तो N24 पे क्या होगा N1 प्लस एक कम नंबर आ रहा है, देखो 5th पे 4 है मल्टीपल, 4 पे 3 है, तो 24 पे इधर 23 होगा इंटू 6, बट N24 इज ट्वाइस ऑफ N1, तो N24 की जगह पे ट्वाइस N1 रख दिया। दिस 6 3 जा 18 कैरी 1, 6 2 जा 12 प्लस 1 13, ये N1 इस साइड आके माइनस हो गया, दिस इज 138, सो N1 इज 138 हर्ट्ज। बट आपको किसका फ्रीक्वेंसी पूछा है? फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड ट्यूनिंग फॉर्क, तो सेकेंड ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी क्या होगा? N1 से एक 6 ज्यादा होगा, बिकॉज द बीट फ्रीक्वेंसी इज 6, सो दिस इज 138, N1 138 आया हुआ है, 138 प्लस 6, द आंसर इज 144 हर्ट्ज। Second fork का frequency, that is option number C for question number 20. Now question number 21, what is the question? Two tuning forks P and Q when set vibrating gives 4 beats per second. Beats per second means difference of frequencies, P और Q के बीच का frequency का difference है 4. If the prong of fork P is filed आफ्टर फाइलिंग फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, तो P को फाइल किया तो P का फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज इन केस नंबर 2, द बीट्स आर रिड्यूस टू 2 पर सेकेंड, तो सेकेंड केस के बीट्स हो गए 2। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ P इफ द Q इज 250 हर्ट्ज? ओके, तो Q का फ्रीक्वेंसी इज 250 हर्ट्ज, इट इज गिवन। अब फर्स्ट केस में P जो है Q के साथ 4 बीट्स दे रहा है, तो P का ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी Q की फ्रीक्वेंसी से या तो 4 बीट्स ज्यादा होगा या तो कम, क्योंकि बिकॉज बीट फ्रीक्वेंसी इज गिवन, बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है N1 माइनस N2। अब NQ इज 250, आइदर प्लस 4 और प्लस माइनस 4, सो दिस इज 254 हर्ट्ज और 246 हर्ट्ज, ये QP का ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी होगा। अब केस नंबर 2 में आफ्टर फाइलिंग प्रॉन्ग्स ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क P आर फाइल्ड, तो वो Q के साथ 2 बीट्स पर सेकेंड दे रहा है, तो P का नया फ्रीक्वेंसी NP डैश से दिखाता हूं मैं, वो NQ के साथ अब 2 बीट दे रहा है, बट NQ इज 250, तो प्लस माइनस 2, तो NP डैश इज आइदर 252 हर्ट्ज और 248 हर्ट्ज। बट याद रखना कि आफ्टर फाइलिंग फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, तो NP डैश इज आफ्टर फाइलिंग, दिस इज बिफोर फाइलिंग, तो NP डैश NP से बड़ा होना चाहिए। तो अगर मैं NP 254 हर्ट्ज लेता हूं तो NP डैश बड़ा ही नहीं दिख रहा है, तो छोटा हो गया, जबकि आफ्टर फाइलिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, इंक्रीज होती है, बड़ा नहीं हो रहा है। अगर मैं इसको 254 लूं और अगर मैं NP ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 246 हर्ट्ज लूं तो ये देखो बड़ा दिखाई दे रहा है, और आफ्टर फाइलिंग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज भी होनी चाहिए, दोनों वैल्यू इससे बड़ी है, तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी इज 246 हर्ट्ज। क्लासरूम में सम सॉल्व कराया हुआ है, ये 21 का आंसर इज A। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वायर स्ट्रेस बाय 2 kg weight is 100 hertz. The weight required to produce its octave, octave means double,
इजी। N1 इज 100 हर्ट्ज, ये कब है? जब टेंशन इज 2 kg वेट। अब N2 इज इट्स ऑक्टेव, ऑक्टेव मीन्स इसका डबल 200 हर्ट्ज और टेंशन इज आस्क्ड। बेटा एन का फ्री फॉर्मूला क्या होता है? वायर है, वायर में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1/2L अंडर रूट ऑफ टी बाई एम, मतलब एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टी। तो मैं डायरेक्ट करता हूं, सो N2 अपॉन N1 विल बिकम इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T2 अपॉन T1 स्क्वायरिंग N2 अपॉन N1 का होल स्क्वायर इज T2 अपॉन T1। N2 की वैल्यू इज 200, N1 की वैल्यू इज 100 का स्क्वायर इज T2 फाइंड आउट करना है। T1 इज 2 kg वेट, 0 0 गॉन, 2 का स्क्वायर 4, 2 इधर आएगा मल्टीप्लाई T2, तो T2 का आंसर इज 8 kg वेट। आंसर इज ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 22। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द क्वेश्चन? A uniform metal wire has length L, mass M and cross sectional area A. It is under tension T. V is the speed of transverse wave along the wire. तो V का फॉर्मूला speed of transverse wave along a stress string is T under root of T by M, where T is tension and M is mass spent length. It is not capital M, it is small m mass spent length I have written. The density of the wire is asked. बेटा mass spent length का फॉर्मूला क्या होता है? It is पाई आर स्क्वायर रो, या इसे आप A इंटू रो भी बोल सकते हैं, वेयर A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड रो इज डेंसिटी। सो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं वेलोसिटी के फॉर्मूले में, अंडर रूट ऑफ टी बाय ए रो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, आपको डेंसिटी पूछा है तो V स्क्वायर इज टी बाय ए रो, सो रो विल कम इन न्यूमरेटर एंड V स्क्वायर विल गो इन डिनोमिनेटर। ये इजी क्वेश्चन है। So rho is T by AB square, T by AB square, option number B. 23 का आंसर is option number B. Now question number 24. A metal string of length L and diameter D is vibrating with fundamental frequency N, मतलब N को diameter के फॉर्म में लिखना है। When tension T is applied to it, keeping the tension same, the length and diameter of string are doubled. इधर देखो, सेकेंड केस का टेंशन और फर्स्ट केस का टेंशन इज सेम, लेंथ इज डबल्ड, सेकेंड केस का लेंथ इज ट्वाइस ऑफ लेंथ ऑफ फर्स्ट केस, सॉरी, and diameter is also double, तो diameter in second case is twice of diameter in first case. The frequency of vibration will be, अच्छा तो सेकेंड केस का फ्रीक्वेंसी पूछा हुआ है बेटा। व्हाट इज फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 1/2L अंडर रूट ऑफ टी बाई एम, बट हम m को बोल सकते हैं पाई आर स्क्वायर रो या पाई डी स्क्वायर बाई 4 रो। तो जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1/2L अंडर रूट ऑफ टी और ये पाई डी स्क्वायर बाई 4 रो, तो ये 4 विल गो इन न्यूमरेटर, 1/2L अंडर रूट ऑफ 4t बाय पाई डी स्क्वायर रो, तो 4 विल कम आउट ऑफ द रूट विच विल बी 2 और डी स्क्वायर बाहर आएगा, तो इट इज d, अंदर बचा सिर्फ t और पाई रो, तो 2 गॉन। तो सिंपल n1 का फॉर्मूला बन जाएगा 1/L1d1 T1 पाई रो, और N2 का फॉर्मूला बन जाएगा 1/L2d2 अंडर रूट ऑफ, बट T1 T2 दोनों सेम है तो आप T को लिखो ही मत ना, T1 T2 वो तो कैंसिल ही होने वाला है, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो पाई रो। तो आप N2 को N1 से डिवाइड करो, तो आप N2 को जब N1 से डिवाइड करोगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, आंसर होगा L1d1 अपॉन L2d2, बट N1 इज N, L2 इज ट्वाइस ऑफ L1, L2 की जगह पे ट्वाइस ऑफ L1 करो, और D2 इज ट्वाइस ऑफ D1, तो D1 D2 की जगह पे ट्वाइस ऑफ D1, D1 गॉन, L1 गॉन, N2 अपॉन N इज 1/4,
So n2 is n/4. तो सेकेंड केस का फ्रीक्वेंसी इज n/4 वेयर n इज फर्स्ट केस का फ्रीक्वेंसी. So 24th सम का आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. Now question number 25. A pipe PC closed at one end and pipe PO open at both ends are vibrating in second overtone. अच्छा, दोनों second overtone में vibrate हो रहे हैं. They are in resonance with a given tuning fork. Tuning resonance means same frequency. दोनों पाइप्स ओपन और क्लोज ट्यूनिंग फॉक के साथ रेजोनेंस में, मतलब दोनों का फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फॉक फ्रीक्वेंसी के इक्वल है, मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसीज भी इक्वल हो गई. लेकिन कौन सा मोड? सेकेंड ओवरटोन. द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ क्लोज पाइप टू ओपन पाइप, क्लोज पाइप टू ओपन पाइप का लेंथ चाहिए रेशियो, ध्यान रखना. देखो क्लोज पाइप में व्हाट आर द फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट? और हार्मोनिक्स n के बाद 3n, देन 5n, देन 7n एंड सो ऑन. ये क्लोज पाइप है. n इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, मैं इसको nc लिख देता हूं, n क्लोज. और ओपन पाइप में ऑल हार्मोनिक्स होते हैं 1n, फिर 2n, फिर 3n, फिर 4n एंड सो ऑन. इसको मैं ओपन पाइप लिखता हूं. तो दोनों का सेकेंड ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी इक्वल है. तो सेकेंड ओवरटोन कौन है? ये है, ये फंडामेंटल, दिस इज फर्स्ट ओवरटोन, दिस इज सेकेंड ओवरटोन. इसका सेकेंड ओवरटोन कौन है? ये रहा, राइट ना. तो दोनों के सेकेंड ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी इक्वल बोल रहा है, रेजोनेंस है, मतलब 5 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज पाइप इज 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप. नाउ क्लोज पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है V/4L. LC मीन्स क्लोज पाइप इज थ्राइस ऑफ ओपन पाइप का फंडामेंटल का फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है V/2L. बेटा V गॉन, आपको फाइंड करना है LC/LO. तो ये LC को ऊपर लेके जाओ, बाकी नंबर इधर लाओ. दिस इज 5/4. 2 will come in numerator and 3 will come in denominator. ये LC ऊपर जाएगा तो LC/LO. 2 2s are 4. तो LC/LO is 5/6. ये आंसर हो गया. LC/LO 5/6. इजी क्वेश्चन है, खाली आपको सेकेंड हार्मोनिक गौर से देखना है कि कौन है सेकेंड हार्मोनिक का फ्रीक्वेंसी. सो 25 का आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. नाउ क्वेश्चन नंबर 26. An infinite line charge produces a field of, this is intensity of electric field E at a distance of, this is R, 2 सेंटीमीटर है, मीटर में ले लेंगे. द लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्बडा पूछा हो, लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लैम्बडा से दिखाते हैं. इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्बडा बाई आर. कोई एक्चुअल फॉर्मूला ऐसा है कि, सॉरी दिस इज 2 लैम्बडा/2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. तो इसका फॉर्मेट अगर चेंज करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा हो जाएगा. क्यों? क्योंकि इसकी पूरी वैल्यू हमें पता है 9 × 10⁹, इसलिए हम मोस्ट प्रॉब्ली ये फॉर्मेट यूज करते हैं. आपको सब चीजें दी हुई है, खाली लैम्बडा पूछा है. देखो ई का वैल्यू दिया है 7.182 × 10⁸. 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू इज 9 × 10⁹ into 2 lambda is asked and r का वैल्यू इज 2 सेंटीमीटर, दैट इज 2 × 10⁻² मीटर. ये 2 गॉन. अब 7.182 × 10⁸ into 10⁻², ये न्यूमरेटर में जाएगा और ये 9 × 10⁹ विल गो इन डिनोमिनेटर विच इज योर लैम्बडा. अब आंसर क्या हो गया? ये 9 से पहले आप डिवाइड करो, 0. 9 7s are 63, बचा 8 8 88, 9 9s are 81, 7 2, 9 8s are 72 into 10⁻². 9 + 9 ऊपर या -9, तो 8 - 9 -1 और -2 is -3 is your lambda. So answer is, so lambda is 7.98. एक प्लेस उधर शिफ्ट करते तो यहाँ पे 10⁻⁻4 हो जाएगा. लीनियर चार्ज डेंसिटी कूलॉम पर मीटर, दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी. ऑप्शन इज बी फॉर क्वेश्चन नंबर 26. नाउ क्वेश्चन नंबर 27. 2 conducting spheres of radii
Two conducting spheres of radii r1 and r2 are charged to same surface charge density. भाई surface charge density को सिग्मा से दिखाते हैं दोनों स्फीयर का surface charge density is same, so sigma 1 is equals to sigma 2. What is surface charge density? Surface charge density is charge upon area. The ratio of electric field near their surface. Okay. Sphere है. What is formula for electric intensity near a charged sphere? It is 1 upon 4 pi epsilon 0 q upon r square. Now what is formula for surface charge density? Surface charge density का formula charge upon क्या हो जाएगा? Area. और फर्स्ट स्फीयर का रेडियस इज r1 और सेकेंड का चार्ज इज q2 और रेडियस इज r2, तो 4 पाई r2 स्क्वायर उसका एरिया। बेटा दोनों साइड एप्सिलॉन नॉट से अगर मैं डिवाइड करूं तो इट विल बिकम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 बाई r1 स्क्वायर, और यहाँ पे भी डिवाइड दोनों साइड कर रहे हैं तो इट इज बैलेंस्ड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q2 बाई r2 स्क्वायर। अरे यार ये तो डायरेक्ट E1 है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आउटसाइड अ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, दिस इज E2। तो अगर मैं E1 और E2 का रेशियो लूं तो आंसर इज 1:1, दोनों इक्वल है ना। डी फॉर क्वेश्चन नंबर 27। नाउ क्वेश्चन नंबर 28। A charge of 10/3 into 10 raised to -9 coulomb are placed at each of the four corners of a square of side 8 centimeter. Side is in centimeter. The potential at intersection of diagonals. ये चार डायगोनल्स है, चार साइड से ऑफ स्क्वायर, चार्ज सब पे चार्ज सेम है वर्टाइसेस पे। साइड इज 8 सेंटीमीटर। यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट पोटेंशियल एट इंटरसेक्शन, यहां पे पोटेंशियल फाइंड करना है ओ पे। तो बेटा यहां से यहां तक का लेंथ कितना होगा? स्क्वायर का ये 8 है, ये 8 है, तो फुल डायगोनल का लेंथ होता है 8 इंटू √2 इंटू साइड, बट हाफ है तो 8 √2/2 हो जाएगा, दैट इज 4√2। सेंटीमीटर है तो मीटर में 4√2 इंटू 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा ये वाला लेंथ। सो पोटेंशियल एट पॉइंट ओ ड्यू टू वन चार्ज का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r, बट पॉइंट ओ पे पोटेंशियल चारों वर्टाइसेस की वजह से होंगे, तो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट ओ विल बी 4 टाइम्स ऑफ दिस, बराबर ना। तो ये 4 टाइम्स कर देंगे, तो 4 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, q की वैल्यू इज 10/3 इंटू 10⁻⁻9 अपॉन r, तो r इज योर 4√2 इंटू 10⁻⁻²। इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 4 4 गॉन, 3 3 जा 9। सो अब क्या करें? इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ऑप्शंस आर इन √2, ओके फाइन। यहां पे 3 बचा, यहां पे √2 बचा, 10 के टोटल पावर्स -9 + 9 गया, 10⁻² ऊपर गया, +2 हो गया, इस 10 के साथ 10⁻³ हो गया। सो बेटा ये 3000 हो गया अपॉन √2। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को √2 से रेशनलाइज कर देते हैं, सो ये 1500 इंटू √2 वोल्ट्स मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो ओ पे एक चार्ज की वजह से पोटेंशियल का ये फॉर्मूला होगा, बट पोटेंशियल इज एडिटिव, जो भी रहता है वो सब टोटल पोटेंशियल ऐड हो जाएगा, तो 4 टाइम्स हो जाएगा, तो आंसर इज ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 29। 4 identical charges 50 microcoulomb each are placed on one at each corner of a square of side 2 meter, सेम सम आ गया है ऑलमोस्ट, थोड़े बहुत चेंजेस होंगे। नाउ द साइड लेंथ इज, चार्ज इज
50 microcoulomb and side is 2 meter. Now no need to convert in SI, already 2 meter में दिया हुआ है. How much external energy is required? Energy means work done to bring another charge of 50 microcoulomb. वो चार्ज भी सेम है इसके ही जैसा, from infinity to center. Center means point O. तो हमने जैसा पोटेंशियल एट पॉइंट O फाइंड किया था वही करेंगे. पहले हमको ये लेंथ फाइंड आउट करनी है. तो ये लेंथ कितना होगा? Entire diagonal is 2 root 2. Root 2 into side. तो this half length is 2 root 2 upon 2 कर देंगे तो that will become root 2. So potential due to one charge will be 1 upon 4 pi epsilon 0 q upon r. So 9 into 10 raised to 9, q की value is 50 microcoulomb, that is 10 raised to minus 6 coulomb, और r is root 2. तो 59 it is 450 by root 2 into 10 raised to 3. ये एक चार्ज की वजह से पोटेंशियल हुआ. ऐसे पोटेंशियल एट पॉइंट ओ चारों की वजह से कितना हो जाएगा? टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट ओ विल बी 4 टाइम्स ऑफ V1. तो 4 इंटू 450 अपॉन रूट 2 इंटू 10 रेज टू 3. सो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 450 टू द ये आएगा 900 रूट 2 इंटू 10 रेज टू 3. अब ये पोटेंशियल एट पॉइंट ओ आया, बट हम लोग को वर्क डन चाहिए टू ब्रिंग अ चार्ज ऑफ 50 माइक्रोकूलॉम. 50 माइक्रोकूलॉम के चार्ज को इन्फिनिटी से ओ पॉइंट पे लाने का वर्क चाहिए. तो वर्क डन इज चार्ज इनटू वीओ माइनस वी इन्फिनिटी. इन्फिनिटी से ओ पे ला रहे, बट पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज 0, तो क्यू इंटू वीओ. क्यू इज 50 माइक्रोकूलॉम मीन्स 50 इंटू 10 रेज टू माइनस 6 एंड वीओ इज 900 रूट 2 इंटू 10 रेज टू 3. सो इसे सॉल्व करते हैं हम. देखो ये दो जीरोस इसके साथ मिलकर 10 रेज टू 6, ये माइनस 6 को हटा देगा. 5 इंटू 9 इंटू रूट 2, 5 9 जा 45 और रूट 2 की वैल्यू इज 1.4. तो इसे मल्टीप्लाई करते हैं. तो 63 64 के आसपास आंसर आएगा. 141 आगे ले लेंगे तो और भी नंबर बढ़ जाएगा. तो आंसर ए आ रहा है क्वेश्चन नंबर 29 का. आंसर इज ए. नाउ नंबर 30. व्हेन अ प्रोटॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू 1 volt, its kinetic energy, it's easy. Kinetic energy of a charge when it is accelerated through potential V is charge, proton का charge is 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb और V is 1 volt. So you have 1.6 into 10 raised to minus 19 joule, which is 1 electron volt. So the answer is 1 electron volt. Option C for question number 30. Now question number 31. A hollow conducting sphere of radius capital R has charge plus Q on its surface. What is the electric potential within the sphere at a distance of R by 3? Within the sphere, but within the sphere वही potential होता है जो surface पे होता है. And what is formula for potential on the surface? It is 1 upon 4 pi epsilon 0 Q by R. R is the radius, capital R. तो जो surface पे potential होगा वही interior के point पे होगा. तो answer is option number C. Small r will not come क्योंकि capital R is the radius. Now next question. The potential at a point due to an electric dipole will be maximum and minimum when the angles between the axis of dipole and line running. What is formula for potential due to a dipole? Electric dipole. ये formula होता है. So maximum कब होगा? when theta will be 0 और minimum कब होगा? when theta will be 180. cos 0 1 होता है तो maximum हो जाएगा. cos 180 minus 1 होगा तो it will be minus potential. तो answer is D for question number 32. Now question number 33. 4 capacitors are connected as shown. The equivalent capacitance between points. ये तो फटाफट कर सकते हैं. यहां से चार्ज जाएगा तो 1 1 1 माइक्रो आर इन सीरीज, जो कि 1 के साथ इस 1 के साथ पैरेलल है. तो 1 सीरीज 1 कितना हो जाएगा? 3 सी सीरीज में तो C/3 होंगे. तो इन तीनों का जो रिजल्टेंट होगा
1/3 माइक्रोफेराड हो जाएगा, C/3। वो सीरीज में किसके, वो पैरेलल में किसके साथ, 1 माइक्रोफेराड के साथ। तो पैरेलल में 1 माइक्रोफेराड के साथ तो इट विल बी एडेड, तो C इक्विवेलेंट, रेजिस्टेंस का उल्टा फॉर्मूला होता है, पैरेलल में तो ऐड होता है, 1/3 + 1 दैट विल बिकम 4/3 माइक्रोफेराड। सो द आंसर इज 4/3 माइक्रोफेराड। वेरी इजी क्वेश्चन। ये तीनों सीरीज में है तो सीरीज में पैरेलल वाला फॉर्मूला, C सीरीज में, तो C/3 इज देयर इक्विवेलेंट, C/3 मतलब 1/3 माइक्रो, वो इसके साथ पैरेलल में, तो पैरेलल में डायरेक्टली ऐड होते हैं। ऑप्शन नंबर डी फॉर क्वेश्चन नंबर 33। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द क्वेश्चन? Two parallel plates of area A are separated by two different dielectrices as shown. The net capacitance, ये गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में भी सम है। इसको ऐसा पकड़ेंगे तो ये दोनों अज्यूम करो कि सीरीज में। व्हाट इज फॉर्मूला फॉर कैपेसिटी? C1 क्या हो जाएगा पहले का फॉर्मूला? अच्छा, जनरल फॉर्मूला फॉर कैपेसिटी इज A/0 K/D। तो C1 फर्स्ट वाले का क्या हो जाएगा? A/0 K/D इज D½ ये 2 ऊपर गया, K1 इज 1 तो हो गया 2A/0/D। अब सेकेंड वाला, ये सेकेंड है, C2 का फॉर्मूला क्या होगा? A/0 K2, D इज D/2, A तो पूरा A ही है, ये पूरा A, सो A/0 K2 इज 2/D/2, ये 2 ऊपर जाएगा तो इट विल बिकम 4A/0/D। अब इसे इस तरह से पकड़ेंगे ऐसा, तो ये C1 और C2 कैसे कॉम्बिनेशन में दिख रहा है? पैरेलल में, तो पैरेलल में डायरेक्टली ऐड होते हैं, तो C पैरेलल, तो C सीरीज में, ये दोनों सीरीज में दिखाई दे रहे हैं ऐसे। तो सीरीज में व्हाट इज फॉर्मूला टू फाइंड आउट C इक्विवेलेंट? आप शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो बट मैं नहीं करता हूं। C इक्विवेलेंट इज, सीरीज में पैरेलल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करते हैं, सो 1/C इक्विवेलेंट। C1 इज 2A/0/D, बट उसका रेसिप्रोकल D/2A/0, और C2 का रेसिप्रोकल इज D/4A/0। इसका डिनोमीटर भी 4 बनाने के लिए ऊपर नीचे मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, सो 2/4A/0 प्लस, सॉरी यहाँ पे D प्लस D/4A/0। नाउ डिनोमीटर इज सेम, सो दिस इज 3D/4A/0। तो C इक्विवेलेंट के लिए इसका रेसिप्रोकल ले लूंगा, 4A/0/3D। आंसर इज ऑप्शन A फॉर क्वेश्चन नंबर 34। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, if the equivalent capacitance between A and B of the combination of capacitors shown in figure is 3C, equivalent capacity is 3C, then capacitance C is equals to, इक्विवेलेंट कैपेसिटी इज 3C, आपको C का वैल्यू फाइंड आउट करना है। C नहीं, आपको C' का वैल्यू रहेगा यहाँ पे, थोड़ा आई थिंक सो, बिकॉज द आंसर इज इन टर्म्स ऑफ C' रहेगा यहाँ पर। देखो इधर, ये तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो इन तीनों का रिजल्टेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो ऐड हो जाएंगे, 2C + 2C + 2C क्या 6C। अब ये 6C और ये C' कैसे है? सीरीज में, तो सीरीज का इक्विवेलेंट होता है C1 × C2/C1 + C2, तो एक 6C है और दूसरा C' है, तो 6C + C', बट ये C इक्विवेलेंट ऑलरेडी 3C के इक्वल है ऐसा बोल रहा है वो, 3C ले लेना है C इक्विवेलेंट। तो इसे आप सॉल्विंग करेंगे, 6C × C' 6C + C' इज 3C, ये देखो 3 2 तो 2C' 6C + C' इज 1, मल्टीप्लाई करो, सो 2C' 1 × दिस 6C + C'। अब ये C' इस साइड आके माइनस होगा, सो 2C' माइनस, it is 1C', sorry, 2C' - 1C' is C', which is 6C,
तो सी डैश का वैल्यू इज 6C. Option number A for question number 35. Now, number 36. In parallel plate capacitor, electric field between the plates is E. Electric field between the plates is E. तो E का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. इफ द चार्ज इन द प्लेट्स इज Q, दोनों पे Q चार्ज, एक पे प्लस होगा एक माइनस, देन द फोर्स ऑन ईच प्लेट इज, मान लिया इसका इंटेंसिटी E1 है और इस पे इंटेंसिटी E2 है, तो E1 या E2 क्या होगा, हाफ ऑफ E हो जाएगा, क्योंकि अगर सेंटर पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है तो इस साइड जो है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, विच इज हाफ ऑफ E. अब E1 और E2 जो कि E/2 है, अब व्हाट इज फॉर्मूला फॉर E? E का फॉर्मूला, अच्छा E1 का फॉर्मूला क्या होगा, इधर देखो. अब किसी एक प्लेट पे फोर्स पूछा है. अब सिंस E1 इज फोर्स अपॉन क्या, चार्ज, चार्ज इज Q, बट E1 इज योर E/2 ना, तो आपका फोर्स हो गया Q E/2. ऑप्शन ए. देखो इंटीरियर पॉइंट पे कहीं पे मिडल में E इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, बट दोनों साइड जाएगा तो आपका जो E1 और E2 है दोनों प्लेट्स पे, दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, E का हाफ हो जाएगा. बट आपको एक सिंगल प्लेट का फोर्स पूछा है, तो E1 का फॉर्मूला इज फोर्स अपॉन चार्ज, उस वन वाले प्लेट पे चार्ज इज Q, क्वेश्चन में दिया हुआ है. सो F, बट दिस E1 इज E/2, तो F इज EQ/T2. ऑप्शन नंबर ए फॉर क्वेश्चन नंबर 36. नाउ a parallel plate combination of three condensers of capacity 2C, C and C/2 is connected across 10 volt. Across means they are in parallel. और यहां पे लिखा भी है parallel combination of three capacitors. (10 volt supply). All the condensers are fully charged so that Q1, Q2, Q3 रिस्पेक्टिवली इनके ऊपर चार्जेस है. अच्छा, ये कैपेसिटर की कैपेसिटी इज 2C, दूसरे की C, फिर इसकी C/2. देन रेशियो ऑफ Q1, Q2, अरे Q का फॉर्मूला क्या होता है, CV, तो Q1 is to Q2 is to Q3. बेटा सब पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज तो सेम ही आता है, तो इस पे भी 10 वोल्ट जाएगा, इस पे भी 10 वोल्ट जाएगा, इस पे भी 10 वोल्ट जाएगा. तो Q1 will be C1 into V, Q2 will be C2 into V, Q3 will be C3 into V, क्योंकि वोल्टेज तो सब पे सेम है. तो C1 is 2C और वोल्टेज इज 10, वैसे तो कैंसिल हो जाएगा. C2 is C, वोल्टेज इज 10, C3 is C/2, वोल्टेज इज 10, तो ये 10 कैंसल, C कैंसल, दिस इज 2 is to 1 is to 1/2, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 is to 2 is to 1 is the answer. It's very easy question. Option number A for question number 37. Now question number 38. A parallel plate air filled capacitor of capacitance C1 has plate area A and distance between the plates is D. Parallel plate air capacitor. देखो इन प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस इज D and area is A, capacity is C1. तो C1 का फॉर्मूला इज A एप्सिलॉन 0 अपॉन D, बिकॉज एयर है, यहाँ पे लिखा हुआ है. C1 आ गया. When a metal sheet of thickness D/2 and of area A is introduced between plates, its capacity becomes C2. अब केस नंबर 2 में हाफ एरिया D/2 डिस्टेंस में मेटल आ गया जिसका डाइलेक्ट्रिक होता है इन्फिनिटी, और दूसरे वाले हाफ में 1 एयर ही है, थिकनेस इज D/2 और एरिया यही है. सो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटी इज C2. तो हाउ टू फाइंड आउट इट्स इक्विवेलेंट कैपेसिटी, इसका एक तरीका दिया था. इसमें हम कैसा फॉर्मूला यूज करते हैं, A एप्सिलॉन 0, जितना थिकनेस उसका नीचे उसका डाइलेक्ट्रिक, इस टाइप के सम्स में. सो A एप्सिलॉन 0, D1 इज D/2, बट मेटल रखा है तो K1 इज इन्फिनिटी, D2 is D/2 बट एयर है, K is 1.
So C2 is A epsilon 0 by D by 2 because 1 upon infinity is 0, तो बच्चा सिर्फ D by 2. So ये 2 A epsilon 0 upon D हो गया. अब आपको C2 is to C1 करना है, तो C2 का आंसर आया 2 epsilon 0 by D and C1 का आंसर आया है A epsilon 0 by D. So the answer is 2 is to 1 directly आ गया. Answer is option number B for question number 38. Now question number 39, it's very easy. The magnitude of current is shown, the current I, ये I का वैल्यू निकालना है बेटा. कितना हो रहा है? ये 10 एम्पियर है, यहां से 6 निकल गया तो बचा कितना? ये 4 एम्पियर. फिर 4 एम्पियर में 1 और ऐड हुआ तो यहाँ पे कितना हो गया? 5 एम्पियर. 5 एम्पियर में ये 2 एम्पियर और आया, ये 2 एम्पियर है नहीं, दिस इज 6 एम्पियर, दिस इज 2 एम्पियर, तो ये बन गया 8 एम्पियर ऐड हो गया इस नोड पे, इस जंक्शन पे. तो 5 + 8 कितना हो गया? I is equals to 13 एम्पियर इज द आंसर. ऑप्शन नंबर सी फॉर क्वेश्चन नंबर 39. नाउ क्वेश्चन नंबर 40. For what value of unknown resistance X the potential difference between B and D will be 0. मतलब B और D का potential difference 0 मतलब ब्रिज बैलेंस होना चाहिए. मतलब ये R1 इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन इज R2, ये दिस सीरीज कॉम्बिनेशन इज R3 एंड इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन इज R4 का रेशियो बैलेंस होना चाहिए. मतलब R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू R3 अपॉन R4. बट R1 मतलब 12 ओम है, R2 में 1 ओम पैरेलल 1 ओम है, R3 में X और 6 ओम सीरीज में है तो ऐड होंगे, और R4 में 1 ओम पैरेलल 1 ओम अगेन है. तो बेटा 12 1 ओम पैरेलल 1 ओम इज 0.5, दैट साइड इज X + 6 1 ओम पैरेलल 1 ओम 0.5. वो पहले भी कैंसिल कर सकते थे बट मैं रिजल्ट निकाल के दिखाना चाह रहा था. 12 इज X + 6, सो नाउ 6 विल कम दिस साइड एंड इट विल सबट्रैक्ट. सो X का वैल्यू हो गया 6 ओम्स. So unknown resistance X is 6 ohms. Option number B for question number 40. Now question number 41. In a meter bridge experiment, the ratio of left gap resistance to right gap resistance is 2:3. The balancing length from left in 40. Left gap का resistance upon right gap का resistance is left gap का length upon right gap का length. तो ये रेशियो 2:3 है. टोटल लेंथ 100 होता है तो 2 मतलब ये कितना होगा? 40 सेंटीमीटर, और ये कितना होगा? 60 सेंटीमीटर. तो लेफ्ट साइड का लेंथ कितना होना चाहिए? 40 सेंटीमीटर. पूछा भी द बैलेंस पॉइंट फ्रॉम लेफ्ट एंड इज, तो लेफ्ट एंड से लेंथ होगा 40 सेंटीमीटर, तो राइट एंड से 60, तभी ना रेशियो 2:3 आएगा. मीटर ब्रिज का फॉर्मूला. आंसर नंबर सी क्वेश्चन नंबर 41. नाउ 42. In a potentiometer experiment, balancing length with a cell is at length 240 centimeter. On shunting the cell with a resistance of 2 ohm, external resistance capital R. This is the topic. Use of potentiometer to determine internal resistance of a cell. Second case में जब ये शंट में आता है तो balancing length becomes L2. और जब खाली सेल होता है no external resistance तो balancing length is L1. Internal resistance का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है? L1 upon L2 minus 1 into R. L1 is first case का length without shunt, that is 240, and L2 is second case का balancing length with shunt 120 minus 1 into external resistance is 2 ohms. This is 2. This is 2. 2 minus 1 1 into 2 is 2. Option number B for question number 42. Now question number 43. क्या दिया हुआ है? इन अ फिगर अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट हैज बीन शोन, द वैल्यू ऑफ करंट इज, ये करंट निकालना है. दिस इज 2 एम्पियर 2 एम्पियर, वेरी इजी. 4 एम्पियर 1 एम्पियर यहाँ से अंदर आ रहा है तो ये हो गया 5 एम्पियर. 5 एम्पियर में से 1.3 बाहर चला गया तो ये आई क्या हो जाएगा? 5 minus 1.3 which is 3.7 एम्पियर. सो आंसर इज बी 3.7 एम्पियर. KCL के सम्स डाला हुआ है, इजी क्वेश्चन है.
Now, in the arrangement of resistance shown below, the effective resistance between points A and B, ये बैलेंस है, ये पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, इन दोनों में करंट फ्लो नहीं होगा, तो ये तीनों सीरीज कितना हो गया 5 + 10 + 15 हो गया 30 ओम, और ये तीनों भी सीरीज 10 + 20 + 30 60 ओम्स हो गया, और ये 30 और 60 आर इन पैरेलल, तो 30 60 पैरेलल R1 × R2 अपॉन R1 + R2, तो 30 × 60 अपॉन 90, 3 से कट कर दिया, दिस इज 20 ओम्स. आंसर इज ऑप्शन नंबर ए फॉर क्वेश्चन नंबर 44. नाउ क्वेश्चन नंबर 45. ध्यान देंगे, ये सर्किट किसी दूसरी बैच में अभी पढ़ाया था जस्ट. ये सिमेट्रिकल ब्रांच यहाँ पे नहीं आएगा, बैलेंस है, क्योंकि ये एंड और ये एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस इज 0, तो ये आर विल बी आउट ऑफ द सर्किट. ये देखो यहाँ से करंट गया, तो अपर हाफ और लोअर हाफ पैरेलल में, ये सिमेट्रिकल है पूरा सेक्शन, ये एक पार्ट, ये एक पार्ट, ये एक पार्ट, एक पार्ट. तो इस ब्रांच में जो करंट गया वही इस आर में गया, तो ये दोनों आर जो है वो सीरीज में हो गया. कितना हो गया सीरीज में, R + R इज 2R. फिर वो 2R इस R के साथ पैरेलल में है, तो 2R पैरेलल R, 2R पैरेलल R का फॉर्मूला 2R1 × R2 अपॉन R1 + R2, सो दैट इज 2R/3 आएगा. तो अब ये एक पूरे सेक्शन का आंसर हो गया 2R/3. तो इसका सिंप्लीफाइड सर्किट अब ऐसा बनेगा, यहां पे एक 2R/3, यहां पे ये पूरा रिजल्टेंट 2R/3, अगेन ये R और ये R सीरीज 2R पैरेलल विथ R, 2R/3. तो दिस इज 2R/3, दिस इज 2R/3, ये 2R/3, ये 2R/3, तो ये हो गया 4R/3. ये दोनों मिला के सीरीज में है, और इस साइड का भी 4R/3. अब 4R/3 पैरेलल 4R/3 कितना हो गया, 4R/3 डिवाइडेड बाई 2, इट विल बी अगेन 2R/3 ओम्स. दैट इज ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 45. नाउ क्वेश्चन नंबर 46 क्या है, the magnitude and direction of current in the circuit shown will be from A to B. एक ही लूप है, डायरेक्ट KVL लगा दो, ये लो करंट हो गया, मान लिया I करंट है, ऐसे ये एरो के डायरेक्शन में KVL लगता है, तो -1 × I, मैं यहीं पे अप्लाई कर देता हूं ऊपर ही, -1 × I, 1 लिखने की जरूरत नहीं, फिर भी मैं लिख रहा हूं. ये माइनस से प्लस जा रहा है तो +10, फिर प्लस से माइनस जा रहा है तो -4, देन इसमें भी आ ही जाएगा सेम डायरेक्शन ऑफ लूप में, तो -2 × I. फिर जब वो करंट ऐसा आएगा, ऐसा घूम के, तो सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो -3 × I इज 0. तो 10 - 4 इज 6, -1I -2I -3I -6I, तो 6I इज 6, मतलब I इज 1 एम्पियर. मतलब नाउ इफ द करंट इज पॉजिटिव, आंसर इज पॉजिटिव, मतलब हमने जो डायरेक्शन लिया वो सही है, तो डायरेक्शन हमने ऐसा लिया हुआ है, डायरेक्शन ऐसा लिया हुआ है हमने, मतलब फ्रॉम A to B वाया E, 1 एम्पियर फ्रॉम A to B 3E थ्रू E. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 46. ऑप्शन नंबर डी. नाउ 47. Two cells each of EMF E1 and E2 where E1 is more than E2 are connected as shown in figure. When the potentiometer is connected between A and B, बेटा जब A1 और A और B के बीच में कनेक्ट कर रहे हो तो सर्किट सेल कौन सा आ रहा है, E1. द बैलेंसिंग लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज 300. ये आपका L1 हो गया, मतलब A1 और A और B के बीच में कनेक्ट कर रहे हो तो E1 प्रोपोर्शनल टू L1 हो गया. दिस इज योर L1. कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज पोटेंशियल ग्रेडियंट V/L. वो नहीं ले रहा हूं, रेशियो लूंगा, कैंसिल हो जाएगा. नाउ बाय कनेक्टिंग द सेम पोटेंशियोमीटर बिटवीन A एंड C, अब A और C के बीच में कनेक्ट करोगे
तो ए और सी के बीच में टोटल ईएमएफ आ रहा है, दोनों सेल्स आ रहे हैं E1 और E2, बट उनके साइन ऐसे हैं अपोजिट, तो रिजल्टेंट हो गया E1 माइनस E2। और उस केस में द बैलेंसिंग लेंथ इज 100 सेंटीमीटर, ये आपका L2 है। तो पूछा रेशियो ऑफ E1 अपॉन E2, तो ये इजी, डिवाइड कर दो, उसको पहले न्यूमरेटर में रखो, E1 माइनस E2 को डिवाइड करो E1 से, तो इक्वल टू हो जाएगा, जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी दोनों केस में होगी दैट विल बी कैंसल्ड। अब ये इंडिविजुअल डिवाइड करो, E1 बाई E1 इज 1 माइनस E2 बाई E1, योर L2 इज 100 सेंटीमीटर एंड योर L1 इज 300 सेंटीमीटर, सो 1 माइनस E2 बाई E1 इज 1/3, ये उस साइड आएगा प्लस होगा, 1/3 इस साइड आएगा माइनस होगा, ये सिंप्लीफाई करोगे 3 माइनस 1 दैट इज 2/3 इज E2 बाई E1। हमें पूछा हुआ E1 बाई E2, तो रेसिप्रोकल कर लेंगे उल्टा, इनवर्ट इंडो, E1 बाई E2 इज 3/2, इट्स 3/2, आंसर इज बी फॉर क्वेश्चन नंबर 47। Now, question number 48. The length of a potentiometer wire is L. A cell of EMF E is balanced at a length of L/3 from the positive end of the wire. Full wire का length is L. तो आपका जो potential gradient होगा K, that will be V by L. और balancing length first case का L1 is L/3। तो बेटा फॉर्मूला है, सेल कितना है, E है, फॉर्मूला क्या था, E इज इक्वल्स टू K इंटू L। तो फर्स्ट केस में सेल E है, K इज V बाई L और बैलेंसिंग लेंथ L इज L/3। सम को ध्यान से देखो, ये कैंसल, तो E इज V बाई 3, ठीक है, ये हो गया। अब केस 2 पे आते, इफ द लेंथ ऑफ वायर इज इंक्रीज बाय L/2, मतलब ये जो लेंथ था पोटेंशियोमीटर वायर का, जो टोटल लेंथ L था वो L/2 से बढ़ा दिया, तो अब आपका नया जो K होगा वो V बाय L प्लस L/2 हो जाएगा, दैट इज V बाय 3L/2, K का वैल्यू पोटेंशियल ग्रेडियंट। एट व्हाट डिस्टेंस द सेम सेल विल बैलेंस, आपको L2 पूछा है और सेल सेम है, फॉर्मूला यूज करो, E इज इक्वल्स टू K डैश इंटू बैलेंसिंग लेंथ, नया वाला फाइंड करना है, बट सेम सेल को बैलेंस कराई, बट K डैश हो गया आपका V बाय 3L/2 इंटू ये L, बट आपका E इज V बाई 3 आपने निकाल के रखा है, तो E की जगह पे आप V बाई 3 रखो, ये 2 विल गो इन न्यूमरेटर, V गॉन, 3 गॉन, तो आपका स्मॉल l आ गया कैपिटल L/2। That is option number A for question number 48. Now, question number 49. 10 meter long uniform wire of resistance 2 ohm per meter. Okay, this is resistance per unit length. तो unit length का resistance is 2 ohm. तो 10 meter long wire का resistance क्या होगा, sigma into 10 meter. So 2 into 10 that is 20 ohm हो गया। is connected in series with a battery of EMF 3 volt सीरीज में है and a resistance of 10 ohm, एक्स्ट्रा एक और रेजिस्टेंस है 10 ohm का, इसका रेजिस्टेंस 20 ohm। द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ वायर ये है जिसका रेजिस्टेंस हमने R निकाला, इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट पूछा हुआ है, दैट इज V बाई L, तो उसका ही L लेना पड़ेगा हमको विच इज 10 मीटर, तो उसके अक्रॉस का हम लोगों को V फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आई विल गो फॉर करंट, तो करंट क्या होता है, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस इज R प्लस R डैश, R is resistance of this 10 meter long wire and R dash is the external resistance connected, this is your R dash and इस length का resistance is R, तो I क्या हो गया, E का वैल्यू is 3 volt, this R is 20, ये कैसे निकाला, 1 मीटर का रेजिस्टेंस is 2 ohm, तो 10 मीटर वायर का रेजिस्टेंस 2 into 10 that is 20, तो दिस इज 20 प्लस ये 10, तो I इज 3/30, I इज 0.1 एम्पियर हो गया। अब आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ वायर चाहिए, कौन सा वायर, ये वाला वायर का, तो ये वाले वायर का पोटेंशियल क्या होगा, I इंटू उसका रेजिस्टेंस, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो उसका पोटेंशियल चाहिए तो सिर्फ I इंटू उसका रेजिस्टेंस,
सो I 0.1 और उसका रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 20 ओम, सो दिस इज 2 वोल्ट। नाउ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज V by L, तो 2 वोल्ट अपॉन उसका लेंथ इज 10 मीटर, तो आंसर इज 0.2 वोल्ट पर मीटर। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन। A cell of EMF E whose internal resistance is to be determined is balanced by 243 centimeter length of a potentiometer wire। जब सिर्फ सेल है तो बैलेंसिंग लेंथ इज 243 सेंटीमीटर। When the cell of EMF is shunted by resistance R, तो जब R is shunted तो बैलेंसिंग लेंथ जो आया वो 81 हो गया, दैट इज L2। ये क्वेश्चन दोबारा आ गया, एक ऐसा क्वेश्चन पहले भी था। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इज R पूछा है, तो पेपर थोड़ा इजी बनाया हुआ है, देखना है कि कितने मार्क्स आप स्कोर करते हैं, इसीलिए थोड़ा सा ग्रेड कम किया हुआ है, मतलब इजी थोड़ा कर दिया ताकि आपको कम टाइम में और अच्छा मार्क्स आए। देखते हैं अभी क्या परफॉर्मेंस है आपकी। L1 इज 243, L2 इज 81 और R इज 3, दिस इज 3, 81 को 3 टाइम्स लिया तो दैट इज 243 इंटू 3, दिस इज 2 इंटू 3, सो आंसर इज 6 ohms, दैट इज आंसर ऑप्शन नंबर ए फॉर क्वेश्चन नंबर 50। तो आपका ये जो सॉल्यूशन है वो मैंने दिया। क्वेश्चंस काफ़ी इजी थे, इजी इसलिए रखा हुआ है कि वी वांट टू चेक कि आप ऐसे इजी पेपर में किस लेवल का परफॉर्मेंस दे सकते हो। जो थोड़े वीक स्टूडेंट्स है वो उनकी पढ़ाई कहाँ तक पहुंची है, ये देखने के लिए थोड़ा सा लेवल कम किया गया है। होप सो कि आप अच्छे मार्क्स स्कोर करो। आफ्टर ऑल आपको कोई अगर डाउट रहेगा तो यू कैन आस्क। ओके, थैंक यू एंड थैंक्स अ लॉट।